Praise Lord, brothers. Praise Lord. God has given us one more opportunity to gather in His name. परमेश्वर ने हमें एक और मौका दिया है कि उसके नाम पर हम इकट्ठा हुए, And He has given us one more opportunity to gather so that we can discuss the Word of God. और एक और मौका उन्होंने हमें दिया है ताकि हम उनके वचनों को हम मनन करें। So, from I think from past 2-3 weeks we were looking on chapter 5. गया तो 2-3 हफ्ते से हम अध्याय 5 का हम अभ्यास कर रहे थे। And today also I would like to continue on that chapter. और आज भी मैं चैप्टर 5 में ही मैं रहना चाहता हूँ। And also I would if God willing, we will also look into the second aspect, the B part of chapter 5. और अगर परमेश्वर ने हमें मौका दिया तो 5वां अध्याय का दूसरा भाग भी हम देखेंगे। So what we see in chapter 5 is the cause of adulteration and sexual immorality. और जो 5वां अध्याय का जो विषय हमें पता है कि वो पूरी तरीके से वो व्यभिचार के विषय में वो बात करता है। And here Paul is trying to make the believers make them understand that please do not allow such sin to be continuing in the church. और प्रेरित पौल उधर भाइयों को ये सांत्वना देता है कि इस तरह का पाप को तुम्हारे बीच से निकाल देना। When we read in chapter 5 of verse 2, आज का 2 का जब भी हम देखते हैं, there Paul is telling that and that he that done this deed might be taken away from you. और तुम्हारे बीच में से ये जो काम करने वालों को बीच में से निकाला जाए। Yeah, the person who has done this deed must be taken away. He must be out from among you. इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति ने इस तरह के का काम किया है उन्हें इसके बीच में से निकालना। So the point here, the main issue was that Paul was not physically present there. इसमें बहुत बड़ी मुद्दा की विषय ये है कि पौल इस समय में था नहीं उधर स्थानीय रीति में। Yeah, and Paul, he had given a general idea regarding you should not allow fornication in the church. और ये प्रेरित पौलुस ने ये एक जनरली एक आइडिया बताया है कि ये इस तरीके का जो व्यभिचार है इस तरह कलीसिया में होनी नहीं चाहिए। Yeah, because we know that in the Corinth location that they are, it is a land of full of adultery. और हमें पता है कि हमने देखा था कि ये जो कुरिन्थी का जो स्थान है वो पूरी तरीके से व्यभिचारियों से इस तरह के काम करने वाले से भरा है। And it is a common thing there to practice fornication, adultery from among in the Gentiles. और ये साधारण बात है वे लोगों के बीच में कि ये जातियों में भी इस तरीके का पाप चलता रहा। Fornication, I mean व्यभिचार। व्यभिचार, Yeah, इस तरह so that is why it was the society was so common that it was okay for them to do fornication. तो उधर का उस समय का समाज इस तरह साधारण हो गया था कि इस तरीके का जो व्यभिचार का पाप है वो करने में भी वे लोगों को साधारण तरीके से लगता था। But the sin that this brother did in the church is much more severe. लेकिन ये जो पाप ये भाई ने जो मंडली में किया है ये उससे भी भयंकर है। Because such sin was not even done or named even among the Gentiles that we can see in chapter verse 1. और ये 5वां अध्याय का पहला वचन में हम देखते हैं इस तरह का व्यभिचार जो है वो अन्य जातियों में भी नहीं था। So that is why it was very serious. First of all, fornication itself is a serious sin, but he did more grievous sin than fornication. That was more extreme. हमें पता है व्यभिचार तो पहले से ही ये बहुत बड़ी एक पाप है, गंभीर बात है, लेकिन ये जो है वो जातियों में भी नहीं दिखता था। इस तरीके का व्यभिचार के बातें ये भाई ने मंडली में होते हुए किया, ये उससे भी गंभीर है। So Paul, when he came to know, he's writing them and telling the saints there that you should take action regarding this matter. Even though I am not there, you take action. और इसीलिए प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं स्थानीय रूप में मैं तुम्हारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरीके का भाई के खिलाफ तुम्हें खड़े होना है, तो तुम्हें निकाल देना है, उसके ऊपर न्याय करना है। हाँ, न्याय करना। So that is what we see in verse 3 when Paul is telling that even though I am absent in the body, but I am still present in the spirit with you. इसीलिए प्रेरित पौल कहता है परंतु
आत्मा में शरीर के भाव से दूर तो हूँ, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ हूँ मैं। Yeah, so Paul is available, is there together with them in the spirit. So what you do, just as I have judged him already, you also judge this brother. इसीलिए प्रेरित पौल कहता है, क्योंकि मैं आत्मा में तुम्हारे बीच में हूँ, इसीलिए क्योंकि मैंने ये भाई को इस तरीके का न्याय किया है, इसीलिए तुम भी ये भाई को उसी न्याय दो। Yeah, so you do not worry that because I am not there, you will not be held accountable. But if you do not take action, you will be held accountable. इसीलिए मैं उधर नहीं हूँ करके तुम्हें उधर न्याय नहीं करना, ऐसा नहीं है। अगर तुमने न्याय नहीं किया तो परमेश्वर तुम्हारा लेखा लेगा। So it is very important that whether I am there or not, that is not the issue. But the brothers there, they are already there. You do it. मैं उधर हूँ या नहीं हूँ ये नहीं है विषय, लेकिन ये बात जो तुम्हारे बीच में हुआ है, इसको तुरंत ही इसका न्याय करना है उधर के जो भाई है। And he is giving the authority to the church there to conduct the judgment. और उधर के मंडली को ये अधिकार प्रेरित पौल देता है कि ताकि वे लोग इस प्रकार के व्यक्ति के पर न्याय करें। And the name of the authority is in the name of Jesus Christ. That is what he's telling. In the name of Jesus Christ, when you are gathered together with my spirit and with the power of Lord Jesus Christ, you deliver such a one to Satan. और इसके लिए 4 और 5 में हम देखते हैं कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ के साथ इकट्ठे हो, तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए। Yeah. So what you do in the name of Jesus Christ, you deliver such a person to Satan for destruction. तो प्रभु यीशु मसीह के नाम पे इस व्यक्ति को, ये जो व्यक्ति इस तरह का पाप किया है, उसे विनाश के लिए शैतान के हाथों में सौंपे करके हम 5वां वाक्य में देखते हैं। Please do not think that because I am not there, you are doing any mistake. Do not think that way. तो मैं तुम्हारे बीच में नहीं हूँ, इसके लिए तुम कुछ गलती कर बैठ रहे हो, इस तरह तुम ना सोचिए। But I am there with you in the spirit. So you think as if I am there. तो मैं आत्मा में तुम्हारे बीच में हूँ, मतलब ये है कि मैं इस तरह सोचो कि मैं तुम्हारे बीच में ही हूँ। Yeah. So according to even if you think that I am not there, do not think in that way. I am there with you. So you do the judgment. तो इसीलिए ऐसा ना सोचिए कि मैं तुम्हारे बीच में स्थानीय रूप में नहीं हूँ करके, लेकिन मैं हूँ इस तरह सोचकर तुम ये भाई के खिलाफ न्याय करो। Right. This is the same thing which even Jesus is also telling. तो ये सही, यही बात है प्रभु यीशु मसीह भी कहता है। When we read in Matthew chapter 18, मत्ती का सुसमाचार 18वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं, the verse that we are reading, we actually commonly use this scripture. और ये जो वचन जो हम पढ़ रहे हैं, ये हम साधारण रूप में हम ये हर बार देखते हैं। But when we read the context of the scripture, the meaning is really different. लेकिन हम इसके पीछे का जो रियल जो अर्थ के नींव पर अगर हम ये वाक्य को पढ़े, तो इसका अर्थ पूरी तरीके से विभिन्न है। Yeah, so when this is a common scripture that we read all the time whenever we gather together, we read in Matthew chapter 18 verse 20 that wherever 2 or 3 are gathered in my name, there I am in their midst. इसके लिए मत्ती 18 का 20 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूँ करके ये जो वचन है हम हमेशा पढ़ते हैं। Whenever we start the meeting, whenever brothers gather together, we always commonly use this scripture. और कभी भी हम भाइयों के साथ इकट्ठा होते हैं और हम मंडली में रहते हैं, हम साधारण रूप में सारे भाइयों में से कोई तो एक तो ये वचन लेता ही है। And it is not wrong to use the scripture. और ये वचन इस्तेमाल करना गलत बात नहीं। However, the context is different. लेकिन ये जो बात इधर कही है उसका अर्थ अलग है। Yeah, we see that in order to understand the context, we have to read from verse 15. तो अगर इसका अर्थ क्या है, इस वाक्य क्यों इस तरह लिखा गया, उस तरह समझना है तो वचन 15 से हमें पढ़ना है। Yeah, so there we see that whenever you find a brother who has trespassed against you, अगर तुम कोई भाई को तुम्हारे खिलाफ कोई अपराध करे इस तरह देखे तो, yeah, so first thing in verse 15 he says that you go and tell him his fault and that should be done alone. और तुम ये इस तरह का अपराध अगर तुम्हारे खिलाफ हुआ है तो वो भाई के साथ जाकर उन्हें बातचीत करना है। And you have to do this alone. और इस बातें जो है वो अकेले में करना। And you have to do it in such an intention that you are gaining this brother. और तुम्हें इस तरह वो बातचीत को लेकर जाना है कि तुम ये भाई को तुम प्राप्त करे, जीत पा रहे हो,
जीत पा रहे हो। Yeah, but if he's not listening, अगर ये भाई नहीं सुन रहा, so then in verse 16 we see that you have to take 2 or 3 more brothers so that they can be the witness and that the witness may be established. अगर ये भाई नहीं सुन रहा तो 2 या 3 भाइयों को तुम्हारे साथ ले जाना और ये 2 या 3 भाई जो है तुम्हारे बीच में गवाह बने। Yeah, and then so first we can take 1 or 2 brothers. After that third trip we can take elders also if he's not listening the second time. ओके, हम ये दूसरे बार हम ये जो 2 या 3 भाई को लेकर जा सकते हैं, और अगर फिर भी ये भाई नहीं सुन रहा तो हम मंडली को बुजुर्ग व्यक्ति को भी हम लेकर जा सकते हैं। After all this, after taking the elders also, if he's not listening, what you have to do in verse 17, we see that you have to tell this matter, you have to bring this matter into the church. और अगर इस तरह अगर ये व्यक्ति अगर फिर भी नहीं सुन रहा तो ये जो विषय है हमें मंडली में प्रस्तुत करना है वचन। And then after in verse 17 we can read that. So and then even if he's not listening to the church also, if he's neglecting the church to hear, then it is declared and announced and it is judged in the church that he is a heathen man or he is a normal publican. और अगर ये व्यक्ति अगर कलीसिया को भी नहीं सुन रहा तो अन्य जाति और महसूल लेने वाले के ऐसा जाना जाए। Yeah, so that means that he will have no fellowship. Then if he is a heathen man means the church should not have fellowship with this person. अगर ये व्यक्ति अन्य जाति है तो ये मंडली को तो ये व्यक्ति के साथ तो कभी कभार ये व्यक्ति के साथ फेलोशिप नहीं करना चाहिए। कभी भी नहीं करना है। कभी भी नहीं करना चाहिए। Yeah, till he come back to his senses, he will be considered as a heathen man or a Gentile. अगर ये व्यक्ति if he comes back, जब तक मन नहीं फिराता, ओके, जब तक ये मन नहीं फिराता तब तक ये व्यक्ति को ये अन्य जाति का ही दर्जा दिया जाएगा। Yeah, and then why Jesus is telling in this way? और प्रभु क्यों इस तरह कहता है? And if the church is taking an action in this way, अगर इस तरह मंडली ये व्यक्ति के खिलाफ अगर कुछ कार्रवाई करता है, कुछ एक्शन लेता है। See, first of all, in verse 17, it is clearly written, tell it to the church. This is a matter of the church. तो ये 17 वचन में देखो, ये मंडली कलीसिया को कहो क्योंकि ये जो बात है कलीसिया का है। Yeah. So then what happens if the church is taking an action? Will this judgment is valid? और अगर कलीसिया अगर इसके ऊपर कोई अगर एक्शन अगर न्याय कर रहा है तो ये न्याय क्या सही है? हाँ, क्या इसे माना जाएगा? क्या माना जाएगा? Yes, in verse 18 it is clearly written that it will be valid in heaven and earth. हाँ, वचन 18 में हम देखते हैं ये सिर्फ माना ही नहीं जाएगा लेकिन ये स्वर्ग में और ये पृथ्वी में भी इस तरीके का बात माना जाएगा। That is what in verse 18 we read, that whatever you bind on earth will be bound in heaven. इसके लिए हम वचन 18 में देखते हैं जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में भी बांधा जाएगा। And whatever you lose in the earth or when you loosen it, it will also be loosened in heaven. और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलेगे वह स्वर्ग में भी खुलेगा। Yeah, so what is bound means when you accept that brother, you are keeping he is part of the church. That is why you are binding that brother in the church. That means if he is accepted in the church, then the heaven will also accept him. अगर वो कलीसिया में अगर वो भाई अगर स्वीकारा जा रहा है इसका मतलब वो बांधा जा रहा है वो भाई को, मतलब ये व्यक्ति जो है सिर्फ कलीसिया में नहीं लेकिन वो स्वर्ग में भी स्वीकारा गया। But if you have loosened him in earth, he will also be loosened in heaven. That means if you let go that brother, if he is considered as a heathen, if he is considered as a Gentile in the earth, the action when you are taking in the church, that same action will be reflected in the heaven. इसका मतलब ये कि अगर मंडली में ये व्यक्ति अगर नहीं मन फिरा कर आ रहा तो अगर ये अन्य जाति के समान अगर दर्जा दिया गया है न्याय करने के बाद, तो ये जो बात जो कलीसिया ने जो एक्शन लिया है न्याय किया है वो ही बात जो है वो स्वर्ग में भी इस तरह माना जाएगा। Now, when you're taking this action, remember Jesus is telling as if he's not literally physically present in the church. In that aspect, he's talking. जब यीशु ये बात कर रहा था, ऐसा बात कर रहा है जैसे कि वो शारीरिक रीति से कलीसिया में नहीं है। यीशु is not physically present in the church. In that way, he's explaining to the church. Yes. So now, then what he is telling in verse 19, Jesus is telling that. Okay, तो ये 19वें वचन में यीशु कहता है, Again I say to you that if two of you agree on earth concerning anything
that they ask, it will be done to them in the name of my Father in heaven. यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिससे वे मांगे एक मन के हो, तो वह मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी. Yeah, we need to understand this matter is regarding the judgment of the brother who's whether he should be considered as a Gentile or not. It is regarding that matter. ये मुद्दा जो है, क्या एक व्यक्ति जो है वो अन्य जाति कहलाया जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, इस तरह का न्याय के विषय में वचन कहा है. So when that brother, when that person whom we talk to him and he's not listening in the church, to the church elders also, not even to the church, at that time the brothers they should pray for this matter and they should ask from the Lord, what are we supposed to do? Can we take action regarding this brother? That is the prayer that the brothers should do. That is what Jesus is telling in verse 19. मैं तो 19वें वचन में प्रभु यीशु मसीह ये कहता है, अगर ये व्यक्ति नहीं मान रहा मंडली को, फिर भी अगर तो ये मंडली के पास ये अधिकार है कि ये व्यक्ति को इस तरह अन्य जाति कहलाया जाए, लेकिन इसके पहले भाई लोग मिलकर ये प्रार्थना करना चाहिए प्रभु के साथ कि हाँ प्रभु सच में ये भाई को इस तरह का दर्जा दिया जाना चाहिए, अन्य जाति कहलाया जाना चाहिए करके ये जो प्रार्थना है वो पवित्र संत मिलकर करना चाहिए करके प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा कहता है. So what will happen? Will Jesus be there? Will Jesus accept this prayer? And will Jesus take action, or whatever the church will be taking action? Will Jesus accept that? क्या ये मंडली जो जिस तरीके का न्याय कर रहा है, क्या यीशु ये न्याय को अंगीकार करेगा क्या? That is the verse. It is written in 20. Yes, then Jesus is telling, yes, I will accept it, because wherever 2 or 3 are gathered, and if you execute this judgment in my name, there I am there in your midst. ओके, तो वचन 20 में हम प्रभु यीशु मसीह यूं कहता है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इस मामले में, ये मुद्दे में अगर तुम इकट्ठा हो रहे हो, मेरे नाम पर ये बात कर रहे हो, तो हाँ उनके बीच में मैं हूँ, ये बात को मैं मानूंगा करके ये वचन कहता है. Yeah, so in order to do this judgment, we have to remember that at least 2 persons should be there as a testimony. तो ये न्याय अगर तुम्हें ये भूमि में करना है, एटलीस्ट मिनिमम कम से कम 2 गवाह तो होना चाहिए. That is why in the above verses we see that you have to take 2 or 3 brothers so that witness shall be established there in verse 16. इसके लिए वचन 16 में हम देखते हैं, इसीलिए तुम कभी भी ये भाई के खिलाफ न्याय करे तो 2 या 3 व्यक्ति को तुम्हें साथ पर ले जाना है ताकि वो गवाह बने इसका. Yeah, so then these 2 brothers or 3 brothers or 4 brothers, whoever is there, they will stand as a testimony in the church and they will say, yes, this brother is not accepting his mistake and is not repenting, so we should consider him as a Gentile. तो ये 2-3 भाई जो लेकर गया था, वो मंडली में गवाह बनकर कहना है, हाँ ये इस बात तो सही है कि ये भाई ने नहीं सुना, इसके वजह से ये भाई को इस तरीके का ये अन्य जाति का दर्जा दिया जाना चाहिए. Yeah, after that then the church will unanimously, they will come in one mind and then they will decide, yes, since the testimony is formed, now we cannot allow such a brother, the brother who is continuing such a mistake, we cannot allow this person to continue as a brother. Now he has to be considered as a heathen or a tax collector or a publican. इसीलिए ये 2 गवाह के बातों से हमें ये मंडली ये यूनानिमसली ये एकता में ये एक सोच में वे लोग आ जाते हैं मंडली कि हाँ, क्योंकि ये गवाह अभी साबित हुआ है, जिसके वजह से इस प्रकार का व्यक्ति को अन्य जाति का दर्जा देना चाहिए और ये हमारे बीच से निकाला जाना चाहिए. So whenever a church is coming together to execute judgment in the earth, जब भी मंडली एक साथ आकर ये बात को लेकर जब भी न्याय करने आती है, Galatia में coming in the church to execute judgment, हाँ जब भी मंडली में आकर ये न्याय करती है, at that time I am there with them in their midst. उस समय में मैं वे लोगों के बीच में होकर के प्रभु कहता है. Yeah, this is the context of Matthew 18. When we read in verse 20, we have to understand, based on this context, Jesus is telling, wherever 2 or 3 are gathered in my name, I am there. Whenever 2 means what? 2 या 3 तुम्हारे मैं 2 या 3 अगर इकट्ठे होते हो तो मैं तुम्हारे बीच में हूँ करके प्रभु जब भी कहते समय में ये बात को ऊपर जो हम पढ़े हैं और समझे हैं, इस बात के नींव पर प्रभु ये बात कहता है. Yeah, that means what? Whenever brothers in the church, they are coming together to take an action against another brother regarding
whether he should continue in the fellowship or not, whether the church should have fellowship or not. When you are taking this action, do not worry, I am there in your midst if you are gathering in my name. इसीलिए प्रभु कहता है अगर तुम मेरे नाम पर इकट्ठे होते हो और इस प्रकार का न्याय कर रहे हो कि ये इस प्रकार का भाई, क्या ये मंडली में रहना चाहिए, क्या ये अन्य जाति का दर्जा देना चाहिए, इस तरह का न्याय तुम करते वक्त मत भूलना, मैं तुम्हारे बीच में स्थानीय रूप में नहीं हूं तो भी मैं तुम्हारे बीच में हूं करके प्रभु इस तरह का ऐलान करता है वचन 20 में. Yeah, so that time, after the judgment is executed, the church should not have fellowship with that brother. तो इस तरह का न्याय जब ये मंडली देने के बाद फिर मंडली कभी भी, कलीसिया कभी भी ये भाई के साथ संगति नहीं करती. The same thing that is there mentioned in 1 Corinthians as well. The same spirit, Paul is telling the same matter in 4 and 5. तो वचन 4 और 5 में यही बात जो है प्रेरित पौल इधर कहता है. Yeah, if you read from 3, we can see that I am absent in the body, but don't worry, I am there in the spirit with you. I am present with you. इसके लिए प्रेरित पौल कहता है कि मैं शरीर में तो स्थानीय रूप में तुम्हारे साथ नहीं हूँ, लेकिन तुम घबराए नहीं क्योंकि मैं आत्मा में तुम्हारे साथ हूँ. Yeah, that is why in verse 4 is telling, in the name of Lord Jesus Christ. That is what Jesus said, wherever 2 or 3 are gathered in my name to conduct judgment. The same way Paul is telling, in the name of Jesus Christ, what you do, you deliver this person to Satan. इसके लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम पर जब भी हम वचन 4 में पढ़ते हैं, जिस तरह मत्ती में पढ़े, प्रभु यीशु मसीह के नाम पे अगर तुम इस बात की इकट्ठा हो रहे हो, तो वही बात प्रेरित पौल वही आत्मा से इधर कहता है ये वचन 4 में. Yeah, this to conduct judgment regarding this matters, it is not necessary that we have to wait till Sunday or the Lord's Day. Amen. ये जो व्यक्ति के खिलाफ न्याय करने के लिए हमें रविवार के लिए हमें इंतजार करना जरूरी नहीं है, तुरंत ही करना है. Yeah, for example, if the church comes to know that the brother is not having proper fellowship with the Lord and he was done some sin and is not repenting, and we came to know that on Monday, अगर मंडली को ये बात पता चलता है कि एक भाई जो है इस तरीके का पाप करने के बाद ये पछतारा नहीं है, तो ये भाई के खिलाफ अगर जो हमें न्याय करना है, अगर ये बात अगर हमें मंडे को पता चलता है, तो we should not wait till Sunday to do the judgment. All the brothers can gather on Tuesday itself and can conduct the judgment and the execution. तो ये भाई के खिलाफ ये जो न्याय जो है वो रविवार तक हमें इंतजार करना जरूरी नहीं है, वो तुम ट्यूसडे को ही सारे भाई इकट्ठा होकर ये न्याय कर सकते हैं. Yeah, so wherever or whenever 2 or 3 are gathered, wherever or whenever they are gathered, they can do that. In the name of Jesus Christ, we have to do it. तो प्रभु यीशु मसीह के नाम पे ये तुम्हें करना है करके इधर प्रेरित पौल कहता है, कभी भी तुम इकट्ठा होते हो. जब भी, yeah, that is what verse 20 when we read of Matthew chapter 18. इसीलिए हम वचन 20 में मत्ती 18 का जब हम पढ़ते हैं, जहां दो wherever 2 or 3 are gathered in my name, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा हुए हैं, तो so that there is no specific day mentioned. तो इधर कोई दिन स्पेशल रूप से दिखाया नहीं है, but it is a matter of judgment. We have to do it as fast as possible. क्योंकि न्याय के विषय में ये जल्दी से जल्दी ये न्याय करना चाहिए करके वचन बताता है. Because we know that in verse 6 we see that little leaven, it can leaven the whole lump. हम देखते हैं वचन 6 में कि एक छोटा सा जो खमीर है वो पूरा गूंदे को वो खमीर कर देता है. That is why as soon as possible we have to do this execution or the judgment. इसके लिए ये न्याय जो है जितना जल्दी से जल्दी हम कर सकते हैं उतना जल्दी करना है. And also when in verse 5 we see to deliver such person to Satan. और वचन 5 में हम देखते हैं कि इस तरीके का मनुष्य को हमें शैतान की ओर सौंपना है. When Paul is telling this, अभी प्रेरित पौल इस तरह कहता है, please do not limit that only the person who has done adulteration or fornication, only this person should be committed to given to Satan. तो ऐसा नहीं सोचना कि यही नहीं समझा चला, ऐसा कभी नहीं सोचना कि सिर्फ व्यभिचार किया है इसीलिए इसको शैतान, सिर्फ यही एक पाप के वजह से उसको शैतान के हाथ में सौंपना है करके ऐसा कभी नहीं सोचना. Okay. There are other types of sin also that is done where Paul is telling that you have to deliver such a person to the Satan. तो और भी यही पाप नहीं, और भी बहुत सारे
पाप के विषय में भी वचन कहता है कि वो उस तरीके का व्यक्ति को भी शैतान के हाथ में तुम्हें सौंपना है। Yeah, so it is not limited only to fornication. तो ये सिर्फ केवल सिर्फ व्यभिचार के विषय में ये सीमित नहीं है। Yeah, so when we read in First Timothy chapter 1, तो हम पहला तिमोथी उसका अध्याय 1 में जब हम पढ़ते हैं, verse 19 and 20, when we read, वचन 19 और 20 जब हम पढ़ेंगे, so here Paul is trying to make Timothy understand that you hold the faith with good conscience. तो इधर तिमोथी को पॉल ही कहता है कि तुम्हारे विश्वास को अच्छे विवेक के साथ थामे रहना है। 19-20 पढ़े। और विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। उन्हीं में से हुमनियोस और सिकंदर है, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया कि वे निंदा करना न सीखे। Yeah, see, it is clearly mentioned here. He's talking about Menelaus and Alexander. इधर हुमनियोस और सिकंदर के विषय में इधर लिखा है। Here they are not done anything fornication. इधर देखो, ये लोग व्यभिचार कुछ किया तो नहीं है, But concerning their faith, they had a shipwreck. लेकिन विश्वास की जहाज जो है वो डूब गई। Yeah, they went back to the world. क्योंकि वे लोग जो है वो संसार की ओर चले गए। And they started to blaspheme the name of the Lord. और वे लोग प्रभु की नाम का निंदा करने शुरू हुआ। So that time Paul is telling to Timothy, तो उस समय प्रेरित पौल तिमोथियुस को कहता है that I have delivered such person, whoever is blaspheming, even though their faith is gone, they are not living the believer's life, and they are not even supposed to be called as believers because they are blaspheming the name of Jesus Christ. So what you have to do, we have to consider this person to be delivered into the hand of Satan. क्योंकि ये लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम का निंदा कर रहे, वे लोग विश्वासी भी कहलाने का योग्य नहीं है, इसके लिए वे लोगों को भी शैतान के हाथ में सौंपना है। So please remember that. Please do not think that only when you are doing fornication only you have to send that person to deliver that person to Satan. It is not like that. सिर्फ व्यभिचार के पाप के विषय में ही नहीं वचन कहता है कि तुम शैतान के हाथ में ये व्यक्ति को, इस तरह का व्यक्ति को सौंपना है करके उधर ही नहीं कहा गया है। So that is why my point was in the beginning, when 2-3 weeks ago I was telling that when a person who is not having the proper fellowship in the church, who is not having proper fellowship with the Lord, and is not partaking of the table, he is already in the hand of Satan. तो इसके लिए मैं कहता था कि अगर एक व्यक्ति को सही प्रभु के साथ संगति नहीं है, और अगर बहुत हफ्तों से अगर वो व्यक्ति अगर प्रभु मेज का भाग नहीं है, तो ऑलरेडी क्या है, वो शैतान के हाथों में। Yeah, so this person, and what this is, and the prime example is Hymenaeus and Alexander. They came, their faith is shipwrecked. देखो, ये लोगों का विश्वास का जहाज है, डूब गया है, उसका पूरा उदाहरण हिमेनियोस और सिकंदर के विषय में हम इधर पढ़े। So Paul is telling that you deliver such. So and they also started to blaspheme the name of the Lord because they were not true believers. और ये लोग जो है वो सच्चा विश्वासी नहीं थे, जिसके वजह से वे लोग प्रभु के नाम के निंदा करने चालू हुआ, जिसके वजह से ये शैतान के हाथ में सौंपा जाना चाहिए करके इधर प्रेरित पौल कहता है। Now I don't know exactly how really were they born again, or whether I don't know. Maybe they might be born again. They might have seen another vision, or they might have joined another cult. I don't know. Maybe this might have happened. ये मुझे नहीं पता कि ये सचमुच दोबारा जन्म लिए हुए दो व्यक्ति है कि नहीं, मुझे नहीं पता। शायद वे लोग और अन्य कोई दर्शन देखा होगा और कोई कल्ट ग्रुप में वे लोग चले गए होंगे, इस तरह भी हो सकता है, ये मेरा अनुमान है। So what happened is they left the proper fellowship with the Lord, and they left Paul. Then they were supposed to be helping Paul in their ministry. They did not help them. They went to the world, and what happened? They started to blaspheme the name of the Lord. That is why Paul is telling, "I deliver them unto the Satan." और ये सेविकाई के लिए प्रेरित पौल के साथ खड़े होकर ये लोग सेवा करना चाहिए था, लेकिन ये लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम का निंदा कर रहे हैं और इस तरह संसार के ओर चले गए, और जहाज, ये लोग का विश्वास का जहाज डूब चुका है, जिसके वजह से प्रेरित पौल तिमोथियुस को कहता है कि इस तरह का व्यक्तियों को शैतान के हाथ में सौंपना है। So that is why we have to be very careful when we are not partaking of the Lord's table. When we have fellowship, and if we are not having the proper table, that means proper fellowship with the brothers, proper fellowship in the church, proper fellowship with the Lord, we are actually very, very close. Satan can have his control over us. इसीलिए भाइयों, हमें चौकन्ना रहना है
कि अगर हमें भाइयों के साथ अच्छा संगति नहीं हो रहा, प्रभु के साथ अच्छा संगति नहीं हो रहा, अगर इस तरह का दूरी में प्रभु के साथ अगर हम रिश्ता निभा रहे हैं, तो शैतान हमें कभी भी पकड़ सकते हैं भाइयों। शैतान के पकड़ से हम ज्यादा दूर नहीं। So that is why we have to be very careful. इसीलिए हमें बहुत चौकन्ना रहना है। That is why Paul is here trying to make the other people also understand in Corinth church that you have to take action as fast as possible and you have to execute the judgment here. इसीलिए प्रेरित पौल यूं कहता है कि तुम्हें जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है उधर ये व्यक्ति के खिलाफ न्याय करना है। Only then you can be able to have the Passover feast with sincerity. तो ही तुम फिसोन का जो ये उत्सव है वो तुम सच्चाई से कर सकते हो करके वचन हम देखते हैं। Yeah, with sincerity and because all the leaven should be thrown out. और सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी का उत्सव तुम ही तभी ही मना सकते हैं क्योंकि सारा खमीरी को तुम्हें निकालना है। So I hope you were able to understand the first part of the chapter 5. तो ये पहला भाग जो है अध्याय 5 का तुम्हें समझ आया करके मैं अनुमान करता हूँ। Any brothers, if they have any question, they can ask, or else if nobody is asking, I can go to part 2 then. कोई भाई को अगर कोई संदेह है तो वो पूछ सकता है इधर, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हम दूसरा भाग में चले जाएंगे। Okay, now we'll come to part 2. तो हम ये अध्याय 5 का दूसरा भाग में हम जब भी आते हैं। So what happened was in verse 9 when we read. So वचन 9 में जब भी हम पढ़ते हैं, here Paul is telling that I wrote unto you in an epistle not to company with fornicators. और मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना। Yeah, what kind of epistle is he talking about? ये कौन सा पत्र के विषय में इधर प्रेरित पौल कहता है? This is not the epistle of First Corinthians epistle. तो ये पहला कुरिन्ती का पत्र के विषय में इधर नहीं कहा। This is a letter which was written before First Corinthians. तो ये कुरिन्ती कलीसिया को लिखने से पहले जो पत्र लिखा है प्रेरित पौल ने, वो पत्र के विषय में कहता है। मतलब पहला कोरिन्थी लिखने से पहले वाला उसका पहले का पत्र है ये। To the First Corinthians, we thought that I thought that First Corinthians was the first letter that was written to Corinthian church. But according to this verse, it is clearly says that before this also I have written letters to you. Okay. तो ये वचन पढ़ने के पहले मुझे ऐसा लगता था कि कुरिन्ती कलीसिया के लिए कुरिन्ती का जो लेखा है, जो पत्र है, वो ही लिखा गया है पहला। लेकिन ये वचन से ये स्पष्ट होता है कि कुरिन्ती कलीसिया को कुरिन्ती का ये पत्र लिखने से पहले और एक पत्र लिखा गया है। हाँ, ये जो पहला कोरिन्थी जो हमारा बाइबल में है, मुझे पहला लगा कि ये ही पहला खत रहेगा पौलुस ने लिखा है करके। The first Corinthians that is which we have in our Bible, I thought that was the first letter that was Paul written to Corinthian church. But when we read carefully verse 9 of chapter 5, before this First Corinthians of the Bible, before this also there was other letters written by Paul to Corinth church. Okay. इसके पहले भी कुरिन्ती कलीसिया के लिए ये पत्र इसके पहले भी पत्र लिखा है करके हम देखते हैं ये वचन के द्वारा। And in that Paul is telling that not to have any company with fornicators. और उधर ऐसा स्पष्ट रीति से लिखा है वो पत्र में कि व्यभिचारियों की संगति ना करना। Yeah. So now Paul is coming to a point now. इधर प्रेरित पौल एक मुद्दा पे आ रहा है। Right. So what was that point first? But in order to come to verse 9, he first had to bring unity in the church. That is what we see in chapter 1 to chapter 4. तो ये वचन 9 लिखने से पहले ये मंडली में एक एकता आना जरूरी है। इसके वजह से प्रेरित पौल 1 से लेकर 4 अध्याय तक वो लिखता है। After chapter 4, then he immediately is taking to the matter of the adultery and fornication that is happening within the church. तो ये 4 अध्याय के बाद जल्दी से जल्दी ही प्रेरित पौल जो है वो ये इस तरह का व्यभिचार का पाप के विषय का मुद्दा ले रहा है, which is inside the church, जो मंडली के अंदर हो रहा है। But here in verse 9, what he's talking about is talking about outside the church. लेकिन वचन 9 में जो कहा गया है वो मंडली के बाहर हो रहा है, उस विषय में लिखा गया है। That is why I told you in the church history of Corinth church, when I showed you, we know that in the society there it is common to follow fornication and adultery. That is the society that they are living in. इसीलिए मैं इसके पहले कहा था कि जब भी
वे लोगों को ये इस तरह का जो व्यभिचार का जो पाप है वो करना बहुत ही साधारण तरीके का हो गया था, क्योंकि वो समाज का उस तरीके का रीत रिवाज। So earlier Paul had written a letter and he told them, please do not have fellowship or company with fornicators. तो इसके लिए प्रेरित पौल ये पत्र लिखने से पहले पत्र लिखा जो कहा गया है कि तुम्हें इस तरह का व्यभिचार के साथ संगति ना होना है। But after reading that previous letter, लेकिन वो इसके पहले लिखा हुआ पत्र को पढ़ने के बाद there was a misunderstanding within the church. They thought that we should not keep company with outsiders. वे लोगों के अंदर एक मिसअंडरस्टैंडिंग आया, वे लोग गलतफहमी आया, वे लोग सोचने लगे कि हमें बाहर के लोगों के साथ संगति नहीं करना, इस तरह पॉल लिखता होगा। But then Paul in verse 10 he's trying to correct, or he has to eat his verse 10 is trying to remove that misunderstanding which started because of his previous letter. तो ये पहला पत्र से जो चालू हुआ है वो गलतफहमी को निकालने के लिए प्रेरित पौल इधर 10वां वचन इस तरह कहता है, He's telling that yet I certainly did not mean with the sexual immoral or the fornicators people that is of the world. तो इस तरह यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचार, हाँ वचन 10 पर, मैंने अपने यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति न करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकाल जाना ही पड़ता। Yeah, so now here Paul is trying to make a point here. तो प्रेरित पौल इधर एक बात कहना चाहता है। So in the first part he was dealing with the fornicators that is within the church. तो पहला भाग में जो व्यभिचार जो मंडली के अंदर चल रहा है उसके विषय में प्रेरित पौल कहा, कैसा व्यवहार करना चाहिए वो बताया। But in the second part he is telling how we have to deal with the outsiders who are fornicators. लेकिन बाहर जो लोग व्यभिचार कर रहे हैं वो लोगों के साथ किस तरह व्यवहार करना है करके दूसरा भाग में प्रेरित पौल कहता है। And not only fornicators, और सिर्फ व्यभिचार ही नहीं, but covetous people, और लोभियों, and extortioners, अंधेर करने वाले, and idolaters, मूर्ति पूजक लोग, they all come in the same group. और ये सारे लोग जो है वो एक ही ग्रुप में है। So what happened that when he wrote a previous letter before First Corinthians, तो ये पहला कुरिन्थी के पहले जब ये पत्र लिखा तभी प्रेरित पौल यूं कहा, so when he said that you should not have company with fornicators in verse 9, so people started they did not keep any fellowship with the outsiders. तो जब भी प्रेरित पौल यूं कहा कि पहले पत्र में कि तुम्हें व्यभिचारियों के साथ संगति नहीं करना है, तो वे लोगों ने अन्य जो कलीसिया के बाहर लोगों के साथ संगति नहीं करने चालू की है। Because of which they stopped giving tracts and giving gospel to the outsiders. जिसके वजह से बाहर के लोगों के साथ सुसमाचार बांटना भी बंद हो गया। So then they were living in such a big confusion that how can we live in this world now because we cannot talk to the outsiders now. क्योंकि इस तरह का गलतफहमी में वे लोग आ गए थे कि अभी हम किस तरह ये संसार में जिएंगे, क्योंकि अभी हम बाहर के लोगों के साथ नहीं बात कर सकते। So that is why then Paul is telling that for then you must need to go out to the world. Okay, we have to go out anyway. We have to deal with the world. We have to go out. So please do not think that I'm talking about outsiders. इसीलिए क्योंकि तुम इस संसार में जी रहे हो तो तुम्हें तो निकलना ही पड़ेगा, संसार के लोगों के साथ तो तुम्हें वार्तालाप करना ही पड़ेगा, जिसके लिए ये जो बात है ये संगति तुम्हें जो व्यभिचार का जो बाहर के लोगों के साथ नहीं करना है करके मैं लिखते समय में उस तरीके का समझ में तुम्हें नहीं लेना है करके प्रेरित पौल उधर कहता है। Right. He is telling that I am not talking about outsiders, but I am telling about a person who calls himself as a brother in verse 11. तो ये व्यभिचार जो बाहर है वो उसके विषय में नहीं मैं कह रहा, लेकिन वचन 11 में हम देखते हैं। 11 पढ़े। मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर, यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी न खाना। Yeah, see now what Paul is trying to make the Corinthian people understand here through verse 11. तो वचन 11 के साथ प्रेरित पौल क्या कहना चाहता है कुरिन्थी कलीसिया को, इस प्रकार का
व्यक्ति जो भाई कहता है वो व्यक्ति के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए करके प्रेरित पौल कहता है। Yeah, so first of all, you understand that. Please throw out the misunderstanding whether I told not to company with fornicators. I did not mean I was talking about outsiders. तो बाहर के लोगों के साथ संगति मत करो, व्यभिचारियों के साथ संगति ना करना करके कहते समय में बाहर के लोग जो मंडली के बाहर है वे लोगों के साथ वार्तालाप ना करे, वे लोगों के साथ संगति ना करे, इस तरह का गलत फहमी तुम्हारे बीच में से पहले ही निकाल दो। But in verse 11 is telling that, but I have written it to tell you that you should not keep company with with that person who calls himself a brother and he is a fornicator. हाँ, वचन 11 में प्रेरित पौल कहता है, मेरा कहना यह था कि कोई अगर भाई कहता है और अगर वो व्यभिचार कर रहा है तो उस भाई के साथ, इस भाई के साथ तुम्हें संगति नहीं रखना। If he is a fornicator, और अगर वो एक व्यभिचारी हो, or he is a covetous, अगर वो लोभी हो, or if he is an idolater, अगर वो मूर्ति पूजक हो, and then a reviler, और अगर वो गाली देने वाला हो, and if he is a drunkard, और पियक्कड़ हो, and then he is an extortioner, और अगर वो अंधेर करने वाला क्यों ना हो। अंधेर in the sense जो वसूली करता है उन लोगों के बारे में। Extortioner means those who take money from other believers, who's called a believer and he takes money from other believers. वो अपने आप को भाई कहता है, वो विश्वासी कहता है और दूसरे भाई के जो पैसा है वो लेता है, इस प्रकार का जो स्वभाव। And he takes the money and he does not return the money. और वो पैसा लेने के बाद वो वापस नहीं करता, इस तरह का स्वभाव व्यवहार करने वाला। And when we go and if we tell them to please return the money, he doesn't return the money, but instead of that he give back answers. और अगर वो व्यक्ति जाकर पूछे कि मेरा पैसा लौटाना है तो वो नहीं ले देता, लेकिन वो क्या करता है, कुछ बहाने बनाकर या कुछ बातें कहकर उल्टा जवाब देता। Such kind of people who calls themselves as believers or brothers, with such kind of people you should not have fellowship. तो इस प्रकार का व्यवहार करने वाले भाइयों के साथ तुम्हें संगति नहीं करना है करके प्रेरित पौल। Yeah, here when it means that you should not eat with such a person means you should not have fellowship with that person. इधर हम जैसे पढ़ते हैं कि इस तरह का मनुष्य के साथ तुम्हें खाना भी नहीं खाना है, मतलब इस प्रकार का व्यक्ति के साथ संगति नहीं करना। When we read in 2 John, हम दूसरा यूहन्ना में जब हम पढ़ते हैं वो पत्र में, here even though that the topic is mentioned about Antichrist, इधर भले वो एंटीक्राइस्ट के विषय में उधर कहा है, फिर भी 9 पढ़ना, वचन 1 का 9 पढ़े। जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। Verse 10, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा न दे, उसे न तो घर में आने दो और न नमस्कार करो। and verse 11, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। Yeah, I'm just using this scripture as a principle to support what we are studying in 1 Corinthians. ये जो वचनों को मैं सिद्धांत नींव बांधकर ये जो वचन मैंने लिया है, जो बातें मैं अब तक कही है उसको विषय में मैं कहना चाहता हूँ। So in 1 Corinthians when we read that you should not eat with such a brother, in verse 11 means what? मतलब वचन 11 में जब पहला कुरिन्थी में पढ़े कि इस तरह का व्यक्ति के साथ तुम्हें खाना भी नहीं इस तरह का व्यक्ति के साथ खाना भी नहीं खाना चाहिए, इसका मतलब क्या? वो है that we can read in 2 John, we see that you should not receive him in his own house nor greet him. इसका मतलब दूसरा यूहन्ना में देखते हैं कि तुम्हें इस प्रकार का भाई को तुम्हें घर पे भी नहीं स्वीकारना है, and do not greet him, और उसे नमस्कार भी नहीं करना। And if we do, but what if we fellowship with such a brother, what will happen? अगर तुम इस तरह के भाई के साथ अगर संगति करते हो, तो what will happen? Verse 11 we see that we are also partaking of his evil deed. तो हम उसके बुरे कामों के साझीदार बन जा रहे हैं। Yeah, so that is the same principle is applied here also in 1 Corinthians chapter 5 with a person who calls himself a brother, but what he is now? तो पहला कुरिन्थी 5वां अध्याय में हम जिस तरह का पढ़े कि वो जो भाई कहता है कि वो भाई है और इस तरह का काम करता है, तो वो क्या कहना चाहता है? So if he calls himself as a brother, but actually he is a fornicator
or he is a covetous person, or an idolater, or a reviler, or a drunkard, or extortioner. He is actually any one of this person. वो अपने आप को तो भाई कहता है, लेकिन अगर वो व्यभिचारी हो, लोभी हो, मूर्ति पूजक हो, गाली देने वाला हो, पियक्कड़ और अंधेर करने वाला हो, तो with such people we should not have, with such who call himself as a brother, we should not have a fellowship. तो इस प्रकार का व्यक्ति इस प्रकार का काम जो कर रहा है और अपने आप को भाई कहला रहा है, तो वो व्यक्ति के साथ हमें खाना भी नहीं खाना चाहिए. Yeah, we should not have fellowship, neither we should welcome him in our own house. तो हमें वो व्यक्ति के साथ संगति में नहीं रहना चाहिए, वो व्यक्ति को आमंत्रण नहीं करना चाहिए हमारे घरों में. Yeah, we should never, whenever, even if we see him in the house, we should not, outside the road also, we should not greet him. और अगर हम घर के बाहर भी, अगर हम सड़क में भी मिलते हैं, फिर भी हम उससे नमस्कार नहीं करना है. Why? Because these kind of people is actually, this people that is mentioned here in verse 11 is similar to that of the first part, what we read as the fornicator mentioned above. तो हम ये वचन 11 में जो हम पढ़ते हैं, ये जो व्यक्ति है, वो वही व्यक्ति है जो वचन 1 में लिखा गया था, 5 के पहला वचन. वो नहीं, वही नहीं, वो वही झुंड में आता है. वो झुंड में आता है. Yeah, so then how many type of people are there? One fornicator, 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 group of people. तो 6 लोग है ये झुंड में. देखो, of that of that one person was mentioned above. तो इसमें से एक व्यक्ति जो है, जो व्यभिचार का, ये एक झुंड का एक व्यक्ति जो है, वही व्यक्ति को वो वचन 1 में लिखा गया है. Yeah, chapter 5 of verse 1 till 9, 1 till 8. 1 से 8 तक ये व्यभिचार का व्यक्ति के विषय में लिखा गया है. Yeah, but then in verse 11 Paul is explaining that not only with adulterer, लेकिन वचन 11 में लिखा है, सिर्फ केवल व्यभिचारी के साथ ही नहीं, but also with the covetous person, with the idolater, reviler, drunkard, and extortioner, you have to deal with the same thing as you have done with the fornicator. Amen. इसीलिए व्यभिचार के साथ जिस तरह तुम ऊपर के वचनों में हम जिस प्रकार वो न्याय किया है, व्यवहार है, उसी प्रकार ये लोभी के साथ, मूर्ति पूजक के साथ, गाली देने वाले, पियक्कड़, अंधेर करने वाले के साथ भी व्यवहार होना चाहिए. Yeah, and once the church is declared the judgment with all these 6 type of people, और ये 6 प्रकार का व्यक्ति जो एक झुंड में है, इस प्रकार के लोगों को जब भी मंडली न्याय करता है, after judgment we should not go and eat with that person. वो न्याय करने के बाद वो व्यक्ति के साथ जाकर हम कभी भी संगति में नहीं होना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए. Yeah, that is what Paul is trying to make the people understand. Yeah, so in second part Paul is trying to make them understand, I did not mean to go to the people who are outsiders of the church, but I'm talking about the insiders of the church. इसके लिए प्रेरित पौल कहता था कि दूसरे भाग में, कि मैं ये नहीं कहता कि तुम्हें वो बाहर के लोगों के साथ संगति नहीं करना चाहिए, इस प्रकार का गलतफहमी नहीं होना चाहिए तुम्हारे बीच में, करके प्रेरित पौल कहता है. Yeah, because if you want to buy something outside, if you want to go to shop, if you want to do some work outside, if that person is an extortioner or a fornicator or a covetous man, or do not think that I should not have fellowship with such a person. No, we cannot think that way. Whatever business we have to settle it off and we have to come back. तो अगर जाकर हमें अगर कुछ खरीदना हो या कुछ हमारा काम है, तो अगर वो बाहर जो व्यक्ति जो है, वो अगर व्यभिचार का व्यक्ति हो या बाहर के व्यक्ति हो, तो अगर हम नहीं संगति करें तो हम जी कैसे सकते हैं? ये संसार के साथ हमें अगर बाहर जाके जीना है, तो हमें वो लोगों के साथ तो हमें वार्तालाप करना पड़ेगा. तो मैं ये जो लिखते समय में मैं इस प्रकार का व्यक्तियों के साथ संगति न करना करके वो नहीं मैं इधर चाहता था. इस प्रकार तुम गलतफहमी में न रहना करके प्रेरित पौल कहता है. Yeah, we need to understand this type of people, these type of 6 group of people, these were common during those days. तो ये 6 प्रकार का जो व्यक्ति जो एक झुंड में है, वो उस समय में, वो समाज में वो साधारण बात. एक झुंड मीन्स वो ये 6 प्रकार के लोग थे उधर उस समय में. These 6 type of people they were there living in the society and it was a common thing there. तो ये बहुत साधारण बात है, ये समाज में ये 6 प्रकार के लोग को हम देखते थे. Yeah, but what happened is that these people also, this same kind of behavior people now started to show in the church. लेकिन ये जो व्यवहार, ये जो स्वभाव जो है 6 प्रकार का जो बाहर है,
वो मंडली में जब भी दिखने चला, that time Paul is telling that you have to take action against these people. तभी प्रेरित पौल कहता है इस प्रकार का जो स्वभाव का बातें है वो हमें प्रमोट नहीं करना है, वो उसमें हमें जल्दी से जल्दी ही न्याय करना है। Especially that means what if he says that he is a brother, then you have to do the judgment. अगर वो भाई कहता है कि वो भाई है तो उसके खिलाफ हमें न्याय करना है। Yeah, verse 11 when we read, यदि वो भाई कहलाता है, if he is called himself as a brother in Christ and he is a fornicator and extortioner and covetous and idolater, that time we have the church has the right to execute judgment with that brother who is inside the church. तो अगर वो मसीह में एक भाई है कहकर अगर वो विचार करता है, लोभी है, मूर्ति पूजक है, गाली देने वाला है, पियकड़ है, तो इस प्रकार का व्यक्ति अगर है वो कलीसिया में मंडली में और अगर अपने आप को भाई कहता है मसीह में, तो उस भाई के खिलाफ मंडली एक होकर वो भाई के खिलाफ न्याय करना है। But what happened in First Corinthian people with the people brothers there? लेकिन पहला कुरिन्थी के कलीसिया के लोगों के साथ क्या हुआ था? Instead of mourning and take action against their brother, they were puffed up in verse 2. और देखते हैं वे लोग जो है शोक करना चाहिए था, लेकिन जिसने इस तरह का काम किया है वो लोग व्यक्ति के खिलाफ वे शोक करना चाहिए था, लेकिन वे लोगों ने परंतु घमंड करने लगे। परंतु घमंड किया। Instead of taking action against such person who calls himself as a brother and is a fornicator and adulterer, they did not take action, but they were one with them. They were having fellowship with them. जो व्यक्ति ये कहता है कि अपने आप को भाई है, लेकिन वो मूर्ति पूजक है, वो व्यभिचार है, वो लोभी है, वो गाली देने वाला है, लेकिन ये व्यक्ति के खिलाफ तुम्हें न्याय करना चाहिए था, लेकिन वे लोग न्याय नहीं किए, परंतु वे लोग उल्टा उसके ऊपर घमंड हो रहे थे। And they were having fellowship with their brother. Instead of keeping distance with that brother, they started having fellowship with that brother. और वो भाई के साथ तुम्हें थोड़ा संगति नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो भाई के साथ ये लोग जो कुरिन्थी कलीसिया के लोग संगति तक किए। Why all this happened? ये सारे बात हुआ क्यों? Because they got a misunderstanding with the previous letter, thinking that letter was written for the outsiders. क्योंकि ये जो बात गलतफहमी है, इसके लिए वे लोगों के बीच में आया, क्योंकि प्रेरित पौल जो है इसके पहला जो पत्र लिखा है वो विचारी के संगति न करना जो बाहर लोगों के साथ लिखा गया है करके, ये गलतफहमी जो है वो ये लोगों में आने के वजह से वो इस प्रकार का गलतफहमी कुरिन्थिया मंडली में आया करके हम देखते हैं। Right. So they thought that we should not have fellowship with the outsiders, but it is okay to have fellowship with the insiders. इसके लिए वे लोग समझ गए कि इस तरह का काम करने जो व्यभिचार के काम करने जो बाहर के लोग हैं वे लोगों के साथ नहीं करना है संगति, लेकिन जो मंडली में जो हो रहा है इस प्रकार का पाप वे लोगों के साथ संगति करने में कोई पश्चात नहीं होगा, चल जाएगा करके इस प्रकार का स्वभाव वे लोग में आया। But Paul is telling no. I have written this letter to tell you that if that person who calls himself as a brother and if he is a fornicator, covetous, idolater and reviler, drunkard, extortioner, with such person you should not have fellowship. नहीं, मैंने इस तरह का बात नहीं कही भाइयों, लेकिन मैंने क्या कहा कि अगर ये अपने आप को भाई कहता है, अगर वो मंडली में है और वो अगर इस तरह का व्यभिचार है, अगर वो लोभी व्यक्ति है, अगर वो अंधेर करने वाला पियकड़ है, तो इस प्रकार का व्यक्ति को तुम्हें कलीसिया में नहीं रखना है, बाहर निकालना है, इस तरह का व्यवहार तुम्हें करना है करके प्रेरित पौल कहता है। But at the same time, as we are living in the world, लेकिन उसी समय में क्योंकि हम ये संसार में जी रहे हैं, how should be our walk should be in the world? तो हमारा चाल चलन इस संसार में किस तरह होना चाहिए? That is there in verse 5 of Colossians chapter 4 verse 5. कोलोसे का पुस्तक 4 अध्याय इसका वचन 5 में हम देखते हैं। पढ़े 4 का। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो। Yeah, in verse 4, chapter 4 verse 5, when I read in NKJV selling, walk in wisdom towards those who are outsiders. ओके, बुद्धिमानी के साथ बाहर वालों के साथ बर्ताव करो। Yeah, we have to walk in wisdom with those who are outsiders, who are the worldly people. With them, we have to be wise. We have to know how we are supposed to deal with when we are in the spirit. और हम आत्मा में होते वक्त हमें किस तरह बाहर वालों के साथ हमें व्यवहार करना है, ये समझ हमारे अंदर होना चाहिए।
Yeah, it does. So according to, after reading First Corinthians, it doesn't mean chalo let us have fellowship with the drunkards, let us go and have fellowship with the idolaters. It doesn't mean that way. तो इसके लिए पहला कोरिन्थी का 5वां अध्याय पढ़ने के बाद हम ये नहीं समझना चाहिए कि चलो अभी हम जाकर व्यभिचारियों के साथ या हम लोभी के साथ या इस तरह पियक्कड़ के साथ इस तरह हम वे लोग के साथ संगति करो करके ये नहीं हम सोचना चाहिए. Who are outsiders, जो बाहर के लोग हैं, we have to be very careful when we are dealing with them. तो हम वे लोगों के साथ व्यवहार करने से समय में हमें बहुत ही समझदारी से व्यवहार करना है. Yeah, we have to walk in wisdom when we are with the outsiders. बहुत बुद्धिमान के तरह हमें समझदारी से हमें संसार में चलना है जब हम वे लोगों के साथ व्यवहार करते वक्त. So that is why if somebody gives you a prasad of the idols, can we have fellowship with such a person? तो अगर कोई व्यक्ति अगर मूर्ति पूजा के सामने प्रस्तुत किया हुआ अगर प्रसाद दे रहा है तो क्या वो व्यक्ति के साथ हम संगति कर सकते हैं? After knowing that if it is a prasad, we should say no, I don't want the prasad. ये बात पता करने से ये बात अगर पता चलता है कि वो प्रसाद है तो हमें मना करना चाहिए. Yeah, but that doesn't mean we should not talk to that person. इसका मतलब ये नहीं कि हम वो व्यक्ति के साथ बात नहीं करना चाहिए. If you do not talk then how can we live in the world then? अगर इस प्रकार अगर हम बात नहीं करते तो किस तरह हम फिर इस संसार में जिएंगे? That is what Paul is writing in 1 Corinthians 5 verse 10b part. If you do not have a proper if you do not walk in wisdom and have proper fellowship with the world, then how will we live in this world? तो इसके लिए प्रेरित पौल कहता है कि अगर हमें सही समझ नहीं है संसार में किस प्रकार चलते हैं और अगर हम लोगों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं तो हम अगर हम ये समझ रहे हैं कि नहीं वे लोगों के साथ नहीं संगति करना चाहिए, इस प्रकार का समझ और सोच हमारे में है तो फिर हम किस प्रकार जिएंगे संसार में, ऐसा जो प्रश्न है वो उधर उठा रहा है प्रेरित. Yeah, so that is why we have to be very careful. But the person who calls himself as a brother, with that person it is very clear that we should not have fellowship. इसके लिए हमें ये समझ होना चाहिए कि हम बाहर के वाले के साथ किस तरह व्यवहार करते हो. लेकिन वचन 11 में जिस तरह हम पढ़ते हैं कि अगर जो व्यक्ति भाई कहता है और इस प्रकार का काम वो कर रहा है तो उसके खिलाफ हमें आवाज उठाना है, उसके खिलाफ हमें वो व्यवहार करना है जो हम ऊपर. Yeah, because we have the right to execute judgment within the church, but we do not have the right to execute judgment with the outsiders. क्योंकि हम वो भाई के साथ व्यवहार मंडली के अंदर रहकर हमें वो अधिकार है प्रभु ने दिया है, हम कर सकते हैं, लेकिन बाहर वालों के साथ हमें वो अधिकार नहीं है, हम नहीं कर सकते. हम न्याय नहीं कर सकते. न्याय नहीं कर सकते. The person who is a believer, with that believer who is inside the church, we can execute the judgment if he is doing wrong. अगर ये जो भाई अपने आप को कहता है अगर वो मंडली के अंदर है और इस प्रकार का काम कर रहा है तो हम उसके खिलाफ हम वो एक न्याय कर सकते हैं. But with outsiders we cannot do that. हाँ, लेकिन हम बाहर वालों के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकते. That is what we read in verse 12. वही बात हम वचन 12 में हम पढ़ते हैं. 12. हाँ. क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम, क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते? 13 also. परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है, इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो. Yeah. So in verse 12 and 13 it is clear that we have no right to judge the outsiders and to condemn them. We only have the judge to with the person who calls himself a believer and who is inside the church. तो हमें बाहर वालों के न्याय नहीं करना है लेकिन भीतर वालों का न्याय करना चाहिए करके, क्योंकि वो व्यक्ति जो है अपने आप को भाई कहता है और वो मंडली के अंदर है, इसलिए हम वैसा करते हैं. Yeah, but with outsiders, God will judge them in verse 13a part. उसके लिए जो बाहर के लोग हैं वे लोगों को परमेश्वर ही खुद न्याय करेगा करके वचन 13 में हम देखते हैं. Yeah, that is why Paul is that then Paul is telling the last verse of verse 13b part says that therefore you put away, you stay away from that person who calls himself, that person is a wicked person, who calls himself a believer, he is actually a wicked person. तो इसीलिए प्रेरित पौल लास्ट पंक्ति में यूं कहता है, इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो जो अपने आप को कहता है भाई है लेकिन इस प्रकार का काम करता है जो तो ये व्यक्ति को तुम्हें तुम्हारे बीच में से निकाल देना चाहिए क्योंकि वो कुकर्मा है. Yeah, he was first a believer in the church.
वो पहला तो विश्वासी था मंडली में, he calls himself to be a believer, a brother in Christ. वो ये मसीह में तो भाई करके कहलाता था अपने आप को, But then Paul is telling that no, he is actually a wicked person. लेकिन प्रेरित पौल कहता है कि वो सच में तो वो दुष्ट व्यक्ति है। If he was really a good person, he would have repented. अगर वो सचमुच अगर वो भला व्यक्ति होता तो वो पछता था, And he would have listened to the church elders, and he would have humbled himself, and he would not continue in the sin which is mentioned above. और वो मंडली के गुजरों को वो बातों को वो मानता और वो कभी भी वे ये इस तरह का पाप वो ना करता फिर। But what happened? By continuing in that work, continuing to do the same work, he proved himself that he is not a believer. लेकिन ये बात ये व्यक्ति ये कर ही रहा था, जिसमें से ये साबित किया कि ये व्यक्ति में थोड़ा भी पश्चाताप नहीं था। When we read in Acts, हम जब भी प्रेरितों के कार्य जब हम पढ़ते हैं, in verse chapter 8, we see that there is a man, a magician named Simeon. हम देखते हैं सिमोन नामक का एक जादू टोना करने वाला एक व्यक्ति को हम देखते हैं प्रेरित का कार्य उसका 8वां अध्याय में। We know the story of that person. He said that he was a believer and he got baptized. In verse 13 when we read, और 8 का 13 में हम जब भी पढ़ते हैं वो अपने आप को वो विश्वासी कहलाता है और वो बपतिस्मा भी लिया करके हम वचन 13 में देखते। पढ़े 13 पढ़े। तब शमौन ने आपकी प्रतीति की और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा और चिन्ह और बड़े-बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। Yeah, but then so he said it is written that he believed and he also took water baptism. और ये विश्वास किया और ये बपतिस्मा भी लिया करके हम देखते हैं। But what happened in 18 and 19? पढ़े 18-19। जब शमौन ने देखा 18 and 19, 18-19 में क्या करता है वो? सुनाई दे रहा है? हेलो? हाँ 18-19 पढ़े। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपया लाकर कहा कि यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। Read till 22. पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपयों तेरे साथ नाश हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में न तेरा हिस्सा है न बांटा, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं, इसलिए अपने इस बुराई से मन फिर कर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। Yeah, so see, in verse 22 we read, repent therefore of thy wickedness. वचन 22 में हम देखते इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराओ। Same thing if we read in 1 Corinthians, he said that he is a wicked person. In verse 13 what we read, the same wicked word is used in verse 13 of 1 Corinthians 5. और ये जो कुकर्म व्यक्ति जो है उसको बीच में से निकालना है, वही शब्द जो है वो 1 कुरिन्थी 5वां अध्याय का पहला वचन में भी लिखा है। 13 वाक्य। 13 वचन में लिखा। What Shimon the sorcerer did, he did an act of wickedness. और ये जो जादू टोना करने वाला शिमोन जो व्यक्ति है वो भी इस प्रकार का ये जो दुष्टता किया। And then Peter is telling you repent, maybe Lord will forgive you. और इधर पत्रोस कहता है कि तुम ये बात को मानकर ये बुराई को मानकर तुम मन फिराओ, शायद प्रभु प्रार्थना तुम्हारा सुने, संभव है तेरा मन का विचार क्षमा किया जाएगा। The same way here the person, in order to same way that the Lord's forgiveness may be seen, you have to do action to that person who calls himself a believer, but he is actually a wicked person. I didn't get you. इसलिए वो सेम बात हम देखते हैं जो 1 कोरिन्थ में भी हम देखते हैं, वो जो ऊपर का जो ग्रुप के लोगों के बारे में जो बोलता है कि तुम लोग उस व्यक्ति के साथ तुम लोग न्याय करो, संभव है शायद प्रभु उसको वो न्याय के बाद शायद प्रभु उसको दया दिखा सकते हैं उसके ऊपर। That is why he is being judged. तो क्यों उसको न्याय हो रहा है? Why he is being delivered to Satan? क्यों उसे शैतान के हाथ में सौंपा जा रहा है? That is so that his flesh may be destroyed. Verse 5 when we read, वचन 5 में हम देखते हैं कि क्योंकि उसका शरीर जो है वो नाश किया जाए, and then that the spirit may be saved in the day of the Lord.
और उसका आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उधार पाए, So he will not go to hell. तो वो नरक में तो नहीं जाएगा, But because he did such a heinous crime in the church, he has to be punished. क्योंकि वो मंडली में बहुत बड़ा कुकर्म किया है, जिसके वजह से उसे बहुत बड़ा दंड तो सहना पड़ेगा। And he called himself as a believer. He called himself as a brother in the church. और वो अपने आप को विश्वासी कहता था, भाई कहता था। But the scripture says that you throw away, you put away among yourself that wicked person. लेकिन प्रभु कहता है कि इस प्रकार का दुष्ट काम करने वाले को तुम्हारे बीच से निकाल दो। Yeah, that is what Paul he's trying to make the difference in first part and second part regarding the insiders of the church and the outsiders of the church. इसीलिए प्रेरित पौल जो है वो मंडली के अंदर और बाहर के लोगों के विषय में बहुत बड़ा एक अंतर और फर्क इधर बता रहा है। That is why it is divided into part 1 and part 2 of first chapter 5. इसके लिए भाग 1 और भाग 2 करके 2 भागों में अध्याय 5 को बांटा गया है। Yeah, so by the Spirit of God we can discern by understanding that. और प्रभु के आत्मा के द्वारा हमें ये बात का हम विवेचना कर सकते हैं। So what happened was during those times the church they started to judge the outsiders also. तो ये समय ये कलीसिया ये मंडली के समय में वे लोग बाहर के लोगों को भी न्याय करने चालू किए। By telling that now I will not talk to you, you stay away from me, you are a sinner, you are a bad man. They started to telling this to the outsiders. तो ये लोग क्या किए कि बाहर के लोगों को कहने लगे कि तुम इस प्रकार का काम करते हो, इसीलिए तुम बहुत दूर रहना, तो मैं तुम्हारे साथ संगति नहीं कर सकता हूँ। इस प्रकार का बातें वे लोग कहने लगे। But Paul is trying to make them understand, no, brothers, do not do that. We have no right to judge the outsiders now. लेकिन प्रेरित पौल कहता है कि भाइयों इस प्रकार का काम तुम न करना है, क्योंकि बाहर के लोगों का हम न्याय अभी नहीं कर सकते। Because the Lord will judge them one day. प्रभु तो वे लोगों का न्याय करेगा एक दिन। And he will give us the authority on that day, on that day. But today we do not have the right to judge them. उस दिन में हमें वो अधिकार करने का, न्याय करने का अधिकार देगा, लेकिन अभी हमें मंडली में रहते समय हमें बाहर लोगों का न्याय नहीं कर सकते हैं। But we are supposed to judge those people who call himself as brother and do all the evil deeds. और हमें ये भाई का न्याय करना है जो अपने आप को भाई कहता है और इस प्रकार का कुकर्म करता है। Yeah, so we have to be very careful. So we need to be able to discern and understand how the church working is happening. और इसीलिए जो मंडली का जो चाल चलन है, उसका व्यवहार है, कार्य है, किस प्रकार चलना चाहिए, इस बात का हमें विवेचना हमें होना चाहिए। That is why we need a proper elders in the church who is always ready to stand for the Lord and execute judgment. इसके लिए हमें सही गुजुर व्यक्तियों का मंडली में बहुत जरूरत है, जो प्रभु के लिए इस प्रकार का न्याय के बातों के लिए खास रूप में खड़े रहे। I think it is in 1 Timothy where we see that the elders they deserve double portion because of the labor. Yeah, 1 Timothy chapter 5 verse 17. पहला तिमोथी 5वां अध्याय उसका 17 वचन में हम देखते हैं। पढ़ेंगे, सॉरी 5 का 17। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए। Amen. 2 गुने आदर के योग्य। Yeah, they deserve double honor. तो ये लोग 2 गुने आदर का योग्य बन जाते हैं। And then in verse 20, what they're supposed to do a role in verse 20. और वचन 20 में वे लोगों का कोई जिम्मेदारी है, वे जो निभाना है। 20. पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे, ताकि और लोग भी डरे। हिंदी में इट्स एक्चुअली रॉन्ग, नॉट समझा दे, उनको डांट, सबके सामने उनको डांटना। रिब्यूक दैट पर्सन हु सिंस इन फ्रंट ऑफ ऑल, दैट ऑल मे फियर। तो ये सबके सामने ये व्यक्ति को डांटना है, ताकि जो बाकी जो भाई है ये व्यवहार को देखकर वे लोग डरना चाहिए। Yeah, that is the job of the elders. The elders are supposed to maintain the disciplinary action in the church. और ये जो इस तरह का व्यवहार जो है, जो भाई के खिलाफ उठाया है, वो एक मंडली का गुजुर होने के नाते ये गुजरों का जिम्मेदारी बनता है। Yeah, that is why. But what happened in 1 Corinthians? They were very
passive. They kept quiet. They were not mourning, but they puffed up. लेकिन पहला कोरिन्थी में क्या हुआ, ये लोग बाहर नहीं निकाले, वे लोग न्याय कर No, they did not throw out the person who, they did not do judgment with the brother who was inside and did the mistake. The elders in the church. Hello? I'm sorry, actually outside there were noises. Yeah, no problem. So what happened in First Corinthians was that the elders, which was supposed to execute the action of the judgment of the Lord in the church, they did not do in First Corinthians. और जो प्रेरित, जो प्राचीनों का काम क्या है, जब जो हमने तिमोथी में पढ़ा, उनका काम है कलीसिया में जो गलती करता है, पाप करता है, उनको डांटना और उनके ऊपर न्याय करना, परंतु पहले कोरिन्थियों में वो प्राचीन लोगों ने नहीं किया. Okay. So that is why, brothers, we need to understand, we have to be very careful how we have to take action in the church regarding the matters that the people who call themselves as a brother and who do sin. इसके लिए भाइयों हमें बहुत ही हमें चौकन्ना रहना है कि जो भाई अपने आप को भाई कहता है और इस प्रकार का पाप करता है, तो इस प्रकार का व्यक्ति के साथ हमें किस प्रकार मंडली में व्यवहार करना है करके हमें बहुत चौकन्ना से हमें इस प्रकार का न्याय करना है. We have to be careful with the group that is mentioned in verse 11. और जो 11 वचन में जो झुंड के बारे में कहता है, वो झुंड में भी हमें बहुत समझदारी से हमें वे लोगों के साथ भी हमें व्यवहार करना. This type of people maybe will be among us. और इस प्रकार का जो व्यक्ति है वो हमारे बीच में भी हो सकता है. So we have to be very careful. And once the church understands that who all this type of people are, immediately we have to take action. और जब ये मंडली को पता चलता है कि किस प्रकार का व्यक्ति लोग है ये, तो जल्दी से ही मंडली उसके खिलाफ आवाज उठाना है और वे लोगों के खिलाफ व्यवहार करना, न्याय करना है. In 1 Timothy chapter 5 verse 24, when we read, पहला तिमोथी 5:20 में जब हम पढ़ते हैं, 24 में हम पढ़ते हैं, कितने मनुष्यों के पाप प्रकट हो जाते हैं और न्याय के लिए पहले से पहुंच जाते हैं, पर कितनों के पीछे से आते हैं. Yeah, the first part says that some men's their sin is very clearly evident preceding to judgment. तो कितने मनुष्यों के पाप प्रकट हो जाते हैं और न्याय के लिए पहले से पहुंचे जाते हैं. वो पहला पहलू. जो that means what? There are some who call themselves as believers, call themselves as brothers, and their mistakes and their sin is immediately present. We can see their works, their mistakes and sin immediately. कुछ लोग अपने आप को भाई कहते हैं, लेकिन वे लोगों के पाप जो है वो बहुत ही साफ साफ प्रकट होता है. Right. To them their judgment will come very soon. वे लोगों के विषय में कहता है प्रेरित पौल कि वे लोगों के विषय में न्याय जल्दी से जल्दी आएगा. But then there are some hidden believers who hide themselves. लेकिन इस प्रकार का भी व्यक्ति है, विश्वासी है, जो अपने आप को जो छुपाता है. They call themselves as believers, but they are actually adulterers and fornicators and idolaters and covetous people. ये अपने आप को विश्वासी कहलाते हैं, लेकिन वे लोग व्यभिचारी है, लोभी है, वे लोग इस तरह का कुकर्म करने वाले लोग हैं. Yeah, and to them that person maybe it may not be evident, but later it will be shown. ये लोगों के विषय में शायद ये साफ पाप दिखता नहीं होगा, लेकिन बाद में ये लोगों का न्याय साफ साफ दिखेगा. So that is why in the church we have to understand and see what type of the works that the brothers are doing. Are they really brother or not? We have to see. इसके लिए जो भाई जो काम करते हैं, जो सेवा में जो प्रभु के लिए खड़े होते हैं, तो सचमुच वे लोग खड़े हैं प्रभु के लिए, ये हमें जांचना है. उनके कामों से हमें मालूम पड़ता है कि सचमुच भाई है क्या नहीं. Okay. So by their works we'll come to know whether truly they are brother or not. तो वे लोग के कामों के वजह से वो सचमुच भाई है क्या नहीं हमें समझ आता है. Yeah, because we know that so there will be some brothers who don't like to have fellowship with other brothers. They will speak bad. Before they used to come to our church, but now they're giving bad words. They do idolatry. They do not like to come fellowship. We know that there are some kind of people like that in our church. हमें पता है कि हमारे बीच में भी ऐसा भाई लोग हो सकते हैं जो
गाली देते होगा, कुछ जो इस तरह के बुरे बातें करते होंगे, and they जो don't अपने like to come to the church, and they do not like to have fellowship with the church. और वे लोग कलीसिया में आना नहीं चाहते हैं और मंडली के भाइयों के साथ संगति नहीं करना चाहते हैं। इस प्रकार का भाई लोग हो सकते हैं हमारे And बीच में। they will also give bad words to the church believers also. और वे लोग गाली भी देने चालू हो जाते हैं मंडली के लोगों के अंदर। With such people we have to be very careful, उस प्रकार के लोगों के साथ भी हमें बहुत संभाल के व्यवहार करना है। and we should, I don't think we can even call him brother also. मुझे लगता नहीं है कि वो लोग व्यक्ति को भाई भी करके हम कहला सकते हैं। But the scripture in verse 13 clearly says of 1 Corinthians 5:13 that he is a wicked person. वचन 13 में हम देखते हैं कि उस प्रकार का भाई के विषय में प्रेरित पौल कहता है वो कर्मी है। Yeah, and with this person we should never have fellowship. Do not eat with such person means do not have fellowship. और उस प्रकार के भाई के साथ हमें कोई संगति भी नहीं करना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए, इस प्रकार कहता है। Yeah, and what we read in 2 John that we should not even welcome in his house, in our house. We should not greet him also, and we should not give him food also. और दूसरा यूहन्ना में हमें पढ़ा कि हमें वो व्यक्ति को हमारे घरों में हमें स्वीकारना नहीं है, और हमें सड़कों में भी अगर हम वो व्यक्ति मिलता है तो हमें नमस्कार नहीं करना चाहिए। So may the Lord help us to understand how the Lord deals with such kind of people who call themselves as believer or brother. तो प्रभु हमारे मदद दे कि हमें इस तरह का समझ दे कि किस तरह हमें वो इस प्रकार का भाइयों के साथ हमें व्यवहार और न्याय करना है, जो अपने आप को भाई कहलाता है और इस तरह का कुकर्मी है। I होप यू were able to differentiate between the first part and the second part. मैं अनुमान करता हूँ कि तुम हमारे भाइयों में ये जो दो भागों को जो अध्याय 5 बांटा है वो अच्छी तरह से समझ आ गया है। Verse 1 to 8 is talking to the people who is inside the church. पहला अध्याय 5वां अध्याय के पहला वचन से 8वां वचन तक जो मंडली के अंदर है वो व्यक्ति के विषय में कह रहा है। From verse 9 onwards we see that he's talking concerning regarding the outsiders. और वचन 9 से जो 13वां वाक्य तक बाहर के लोगों का विषय में है। Outside, with people who are inside the church we can execute judgment, but people who are outside we cannot judge now. और जो मंडली के अंदर है वो व्यक्तियों के खिलाफ हम न्याय कर सकते हैं, और जो बाहर के लोग हैं वो व्यक्तियों के साथ हम न्याय नहीं कर सकते। अभी न्याय नहीं कर सकते। अभी नहीं कर सकते। Yeah, then when we read chapter 6 we see that how the Lord is telling, Paul is telling and making the believers understand when we will be able to judge the outsiders. और अध्याय 6 की शुरुआत में प्रेरित पौल वो कहता है कि कभी होगा जो हम बाहर के लोगों का न्याय करेंगे करके उधर लिखता है पौल। The biggest the thing that I learned is in verse 9 when I read that it is written that I had already written another letter to you before 1 Corinthians. तो बहुत बड़ा सीख जो मुझे मिला है ये पढ़ने से, मुझे ये पता चला कि ये जो पत्र लिखने के पहले, पहला कुरिन्थी का पत्र लिखने के पहले ये कुरिन्थी कलीसिया को दूसरा भी पत्र लिखा है करके ये बात मुझे सीखने मिला इसमें। That means 1 Corinthians is actually 2 Corinthians and 2 Corinthians is actually 3 Corinthians. तो सचमुच अगर देखा जाए तो पहला कुरिन्थी जो है वो सच में देखा जाए तो दूसरा कुरिन्थी है, और दूसरा कुरिन्थी जो है वो तीसरा कुरिन्थी। Yeah, but we unfortunately we do not have the epistle which was previously written. और हमें हमारे हाथों में वो नहीं है जो पत्र इसके पहले जो प्रेरित पौल ने वो लोगों को लिखा है। But still the Lord is talking to us. लेकिन फिर भी प्रभु हमसे बात करता है। But whatever Bible we have, that is sufficient for us for our learning and for our growth in Christ. और जो भी वचन है हमारा प्रभु में बढ़ोतरी के लिए बहुत ही मददगार है। May the Lord help us. प्रभु हमारा मदद करे। और भाइयों का न्याय का विषय देखा जाए तो बहुत ही गंभीर बात है। Because what the church decrees on the earth is accepted in heaven. Yes, क्योंकि भाई लोग जो भूमि पर जो विधि करता है वो स्वर्ग भी स्वीकारता है। So it is a great position the church has got. जिसके वजह से कलीसिया को एक बहुत बड़ा ऊंचा पदवी मिला है, जो महान पदवी है वो। Because in
church is the only place where the heaven is able to rule on the earth. क्योंकि कलीसिया ही एक ऐसा स्थान है जहां पर स्वर्ग पूर्ण रीति से न्याय करता है, राज्य करता है, और कलीसिया में वो संपूर्ण रीति से आता है. Because the Holy Spirit in the church is the same Holy Spirit who is connected with the Spirit of Father and the Spirit of the Son. क्योंकि पवित्र आत्मा जो कलीसिया में है वो वही आत्मा है जो पिता और पुत्र के साथ हमें जोड़ा है. Whatever the Father and Son desires and wills, that is communicated to the Holy Spirit, and the Holy Spirit communicates it to the church. The church senses that there is a need of judgment in the church. This is how the senses of the Spirit work. Yes. और हम देखते हैं कि जो पिता और पुत्र ने आग्रह किया है, इच्छा रखा है, ये बात पवित्र आत्मा जान लेता है, और पवित्र आत्मा ये बात कलीसिया को बताता है, जिसके वजह से कलीसिया में ये बात का अनुमान आता है, उनको वो स्पर्श होने लगता है कि हाँ, हमें ऐसा करना चाहिए, ये न्याय करना चाहिए करके ये अनुभव कलीसिया में भाइयों के बीच में वो आता है. क्योंकि पवित्र आत्मा का जो कार्य है, जो पिता और पुत्र के बातों का, वो कलीसिया जल्दी समझ जाता है पवित्र आत्मा के द्वारा. So it is not as if whatever the church has decreed, the heaven is now become enslaved to accept whatever the church judges. It is not exactly like that, though it appears like that. Right. तो उसका मतलब ये नहीं है कि कलीसिया जो भी बोलेगा और जो भी करेगा, जो भी बांधेगा या जो भी खोलेगा, स्वर्ग को मजबूरन मानना पड़ेगा, अरे कलीसिया ने बोला है करके. उसका अर्थ वैसा नहीं है. भले पढ़ते समय में ऐसा लगता रहेगा, परंतु अर्थ वैसा नहीं है. But actually it is the heaven who is influencing the deputy authority on the earth, which is church. Its deputy authority on the earth, which is church. It senses by the anointing of the Spirit, senses what the will of the Father and the Son is, and the judgment is then executed manifestedly out. What actually heaven wants, church is actually only doing it. Yes. तो इसके वास्तव में देखा जाए तो वो कलीसिया जो स्वर्ग है, जो असली सिंहासन और अधिकार में है, जहाँ पर पिता और पुत्र का राज्य का अधिकार वो चल रहा है, अधिकार वो लोग बोलते हैं इसके, और पवित्र आत्मा जो अवस्था जो प्रभु के मन में है, वो बात कलीसिया को प्रकट करता है. तो प्रभु को अगर मन और आग्रह रहता है कि इस भाई के ऊपर न्याय करने के लिए, कलीसिया उस अधिकार को, कलीसिया है जो भूमि में, उसको प्रकट करता है, उसको बाहर दर्शाता है. तो कलीसिया वास्तव में प्रभु के साथ एक मन होने के वजह से जो प्रभु ने इच्छा रखा, वो कलीसिया बस उसको प्रतिबिंबित करके बाहर वो कार्य प्रकट करके दिखाता है. वास्तव में अधिकारी प्रभु है, परंतु कलीसिया है जहां से वो अधिकार प्रकट होकर बाहर दिखता है. And so that much it's like the will of the Father and the Son is, but the church just signs, it just signs, and that sign becomes valuable. तो जैसे कि the witness, sometimes the witness's signature is so important in that manner. जैसे कि उदाहरण में अगर हम लोग न्यायालयों में देखा जाए, न्याय करने से पहले क्या होता है, गवाही अगर सिग्नेचर कर दिया तो वो सिग्नेचर बहुत ही मूल्यवान होता है. वो विरोधी करने के ऊपर वो व्यक्ति के खिलाफ बहुत बड़ा कार्य हो जाता है, क्योंकि वो सिग्नेचर बहुत बड़ा सामर्थ्य दिखा. दूसरी तरह पिता परमेश्वर और पुत्र का जो भी इच्छा है, वो जब प्रस्तुत करते समय में कलीसिया क्या करता है, उसको मानता है और वो दस्तखत कलीसिया करता है, जिसके वजह से कलीसिया का दस्तखत के बलबूते में वो एक बहुत बड़ा न्याय वहां पर होता है. This is a spiritual warfare. There is a spiritual warfare going on, wherein there is a demand for souls by Satan, and the transaction of exchange of souls from one kingdom into another kingdom is a very, very costly affair, because Lord has purchased every soul by a precious blood, and it cannot just be transferred. Once he has been purchased, and he comes out of the world and becomes a part of the church, again from church to go back to the world, which is an exchange of soul, is a very, very costly and painful affair in the spiritual kingdom. And but then there is only through legal way, only by submission of the authority of the church, can the soul
be delivered to Satan. Otherwise, Satan doesn't have the right to touch any brother. There is a hedge of protection around every single believer. तो इसके लिए शैतान शैतान दरअसल वास्तव में हमें समझना है, ये आत्मिक दुनिया में एक बहुत बड़ा युद्ध जो चल रहा है, क्योंकि हम लोग युद्ध भूमि पे है, जहाँ पर हर व्यक्ति का जो प्राण के विषय में शैतान उनसे प्रभु से लड़ते रहता है, उसको वापस वो प्राण चाहिए, क्योंकि हम लोग जो अंधकार के दशा से अवस्था से थे, वापस हम लोग प्रभु के राज्य में आए, जिसकी वजह से शैतान पूर्ण सामर्थ्य से वो कार्य करता है, वापस हमें ले आने के लिए। शैतान प्रभु के हाथ से चंगुलते से छुड़ाकर मतलब खींच कर वापस शैतान के कब्जे में लेकर आने के लिए। इसलिए शैतान पूरा कोशिश करता है विश्वासियों को गिराने के लिए, प्रभु से दूर जाने के लिए, संगति से दूर करने के लिए। और प्रभु को ये बहुत दर्द होता है जब ये मालूम पड़ता है कि एक विश्वासी जो ज्योति का संतान है, परंतु अंधकार की बातों को वो प्रिय लगता है, पसंद करता है, क्योंकि शैतान को फिर मौका अधिकार मिलता है उस विश्वासियों को सताने के लिए, उपद्रव करने के लिए। परंतु प्रभु का दया ये है, एक बात हम देखते हैं कि जब तक प्रभु अनुमति नहीं देता, तब तक शैतान के पास अधिकार नहीं है उस विश्वासियों को सताने के लिए। परंतु वो विश्वासी का दशा इतना बुरा हो जाता है कि कभी कभी प्रभु को छोड़ना पड़ता है कि वो शैतान उसके ऊपर कार्य करने के लिए। We see that Satan asks for souls, and he tries his best. He asks for souls, and he asked for. We see in Moses, he asked for even Job. He has asked for even Elijah. He asked for even Jesus. I mean, in the way the killing was taking place, and the way even in the testing of temptation and trial, Satan tried his best to make him come to this world, bow down to my world, and all. Yes. We see that the same testing happened with Peter. Peter was sold. Satan has asked for him to swift him. Jesus says that. So, if any believer is living a very compromising life with the otherworldly spirit, he is in a very dangerous and risky zone, because Satan masks such people, and he will demand in the court. There's a court in the heaven where they meet often, and there is a demand. So Satan demands for the souls of believers. Many believers I've seen and observed, and we have been discussing this in our forum, where many believers unfortunately die in a very, very tragic incident, which was supposed to be not, so there is a demand for soul. So if the doorway for witchcraft is open, of any sin of witchcraft, which is the sin of rebellion, if there is a rebelliousness that has come in a believer, wherein even in spite of reminding, in spite of correction, in spite of convicting that person that you are not supposed to do, you are doing this is wrong, and that person rebels to do that, sin of rebellion is a sin of witchcraft, which is gives doorway openly for the enemy to demand his soul. So watch out, every brothers and sisters. Even Jesus says, Satan's like a roaring lion waiting to devour. Now when can he devour? It is in this manner when the souls are actually being demanded by Satan. So this is a spiritual warfare, and to lose one soul and go astray and leave from one fold into the world is a very, very costly affair. इसके लिए हम देखते हैं कि शैतान हमेशा प्राणों का वो मांग करते रहता है, और ये साबित हम देखते हैं बाइबल में, हम इसका सबूत हम देखते हैं। उसने मूसा को मांगा, उसने ईयोब को मांगा, एलाइजा को मांगा, यहाँ तक कि यीशु को not bind no मांगा sorry not बांधा, मांगा। और यहाँ तक कि यीशु के विषय में भी वो पूरा कोशिश करता है कि यीशु को ज्योति का राज्य से खींचकर उसको अंधकार का राज्य में लाए। कैसा भी यीशु शैतान को दंडवत करे और यीशु शैतान का सेवा में लग जाए, यीशु के विषय में भी पूरा कोशिश किया था। यहाँ तक कि पत्रोस का विषय में भी हम देखते हैं, प्रभु कहता है पत्रोस को, शैतान ने तेरी मांग किया था ताकि तुझे वो उजाड़ सके। ये सब बातें हम देखते हैं। शैतान का ये कार्य रहता है, जो वो प्राणों को वो मानता है,
ताकि शैतान अपने इच्छा के लिए इस्तेमाल कर सके। इसलिए हमें बहुत संभालना है भाइयों, क्योंकि वो एक गरजता हुआ सिंह के समान है, वो इंतजार करता है कब किसको दबोचे। और जब भी कोई भाई प्रभु का जो ज्योति का है परंतु अंधकार की बातों को वो छूता है, खास रूप में देखा जाए तो जब जादू टोना होता है, जादू टोना का पाप एक ऐसा पाप है जो परमेश्वर का बलवा करने का समान है, जो प्रभु के विरुद्ध है, वो जादू टोने के समान। इसलिए जादू टोने के द्वारा एक ऐसा दुनिया में हम अंधकार का आत्मिक दुनिया में प्रवेश करते हैं जहां पर शैतान को अधिकार मिलता है, मौका मिलता है हमारे अंदर प्रवेश कर वो कार्य करने के लिए। और ये बात शैतान अपना स्वर्गीय न्यायालय में लेकर जाकर ये विषय को डालता भी है, देखो तुम जिसको विश्वासी और अपना बेटा बोलते हो वो तो मेरा काम कर रहा है, मेरा सामान इस्तेमाल कर रहा है बोलकर शैतान परमेश्वर से इजाजत मांगता है, परमिशन मांगता है उसको सताने के लिए। इस तरह शैतान हमेशा मौका ढूंढते रहता है कैसे भी हम जो ज्योति के संतान के लोगों को वापस अंधकार में लेकर जाए और उधर ही वो फंसा के रखे बंदी गृह में डालने का अवस्था में लेकर जाए। इसलिए प्रिय हमें बहुत ही संभालना है इस अंत समय में जो हम जी रहे हैं। Amen, amen. So at the end, what I'm trying to explain is, so there is two words which is used by Jesus. One is whatever you bind on the earth will be bound in heaven, and whatever you lose on the earth will be loosed in heaven. We need to understand the exact meaning of this. तो इसके लिए हमने जब मत्ती का पुस्तक में हमने पढ़ा था उसका 18 अध्याय में जब प्रभु वहां पर कहता है जो कुछ भी तुम बांधोगे वो स्वर्ग में भी बांधा जाएगा और जो कुछ तुम खोलोगे वो स्वर्ग में भी खोला जाएगा करके, उसका सही अर्थ हमें और गहराई से हमें जानना है। So in that only I wanted to add, and that is like binding is actually giving the person to be bonded and to be arrested into the hands of the enemy. That is actually the meaning. Okay. तो 18 पे जो बांधना है करके मतलब क्या है कि शैतान उसको पकड़ेगा और उसको बांध के रखेगा, जो भूमि में वो जो बांधा गया है। We are giving, Jesus talks about, binding and, putting into the darkness regarding the punishment of the believers. हम देखते हैं कि भाई जो इजराइल के विषय में जब प्रभु जो राज्य के खिलाफ कार्य करने वाले लोगों को प्रभु वहां पर कहते हैं कि उनको बांध दो और उसको अंधकार में डाल दो करके प्रभु वहां पर कहता है, उस अर्थ में है बांधने का विषय में। And to lose means a person is being set free from the clutches of the enemy. So whatever we lose, a person, a demon possessed person, when he's set free, is loosed. So he is released in the heaven also. I mean by the authority in heaven, that person gets relieved. Now the satanic principle doesn't have any right over that man. और फिर उसको खोल देना मतलब क्या है कि वो जो भी बंधन में वो फंसा हुआ था, कलीसिया के पास वो अधिकार है उसको मांगने के लिए। अगर कलीसिया ने उस व्यक्ति को भूमि में खोल दिया तो स्वर्ग उसको माना जाएगा, यानी कि पूर्ण तरह से वो जो भी दुष्ट आत्मा की बंधन से वो फंसा हुआ था उससे वो छुटकारा पाकर वो आजाद हो जाता है। This is what is binding and loosing means. इसी का अर्थ है बांधना और खोलने का मतलब। And it is executed by a simple prayer in the name of Lord Jesus Christ. When 2 or 3 gather in the name, in the presence of the Holy Spirit, by the power of Jesus Christ, when we sense it, we execute that authority in judgment. और ये हम लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम करते हैं, जहाँ पर 2 और 3 इस कार्य के लिए एकत्र होकर वो लोग कार्य करते समय में आत्मा की मदद के द्वारा और प्रभु के सामर्थ्य में, या वो भाई लोग वो उसको अनुभव करते हैं और उनको मालूम पड़ता है कि हम लोग सामर्थ्य के अधिकार से हमें वो जो कार्य करना चाहिए वो करे बोलकर उस अधिकार वो प्रभु दिया है। In this matter, we need to exercise such kind of authority to deliver, especially the demon deliverance cases. और इसके लिए इस प्रकार का अवस्था को हम देखते हैं, हमें खोलने का अवस्था चाहिए, खास रूप में जो दुष्ट आत्मा से जो बंधित है। Praise the Lord. So, and in this is how we execute judgment. और इस रीति से हम लोग न्याय को हम लोग कार्य करते हैं। This is what I wanted to actually edit. So what Jebu brother was sharing. Man.